नमस्ते, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम मुद्रास के बारे में समझेंगे। मुद्रास आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योग। दिस इज स्पेशली प्रैक्टिस्ड बाय एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स। सो अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं योग, और हमारा ये जो मुद्रास है ये कुंडलिनी योग या हठ योग में भी आता है। कुंडलिनी योग में कहीं एक पार्ट में यूज करते हैं, और जो हमारा हठ योग है उसमें मुद्रास, बंधास, ये सब जो है ये सब हम मिलाकर यूज करते हैं। इवन आप अभी मुद्रा जो मैं अभी आपको बताऊंगी उसमें आप देखेंगे कैसे हम प्राणायाम इन सब चीजों में भी कैसे मिक्स मैच करके हम मुद्रास यूज करते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट मुद्रास आर। क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूज है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या प्रिकॉशंस हैं। So mudras should be, and this is very important, be only done under a guidance of some guru या फिर कोई टीचर के इंस्ट्रक्शंस के बाद ही आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। Of course, mudras are generally and only practiced by advanced practitioners. However, जो आपके अभी हम जो टाइप्स सुनेंगे उसमें जो हम बात करेंगे, जो हमारे हैंड मुद्रास होते हैं और हमारे जो मन जो हेड मुद्रास होते हैं, तो उन सब के लिए ऑब्वियसली लोग कर ही सकते हैं जो अदर प्रैक्टिशनर्स हैं, बिकॉज यू यूज दोज मुद्रास फॉर डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन योगा, राइट, लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम और ये सब, तो उसके लिए हम यूज करते ही हैं। और इसीलिए कौन सा मुद्रा जो हमारे मुद्रास होते हैं हम कौन से यूज कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स, हु यूजेस एंड वेयर विच मुद्रा वी यूज। So keeping those in mind, it is important for us to understand all the types of mudras that we have, that I will be discussing in a few moments from now. So what is the use of mudra? Uska use kya hai? What is the mechanism and what is the benefit of it? So mudras are basically also mudra ko agar aap vibhajan karenge uska, if you separate the term mudra, then you will understand that it is basically a Sanskrit word only. That basically means that you're using some gesture or some attitude to be able to direct or redirect your prana. So exactly that is the function of mudras also. We use postures or hand postures or some movements or some other techniques to be able to redirect our prana towards inside. So the effect is very similar to dharana or that of pratyahara. So it is very very useful if you're on this path and you're trying to actually redirect or conserve your energy more towards the spiritual practices. So here when we talk about mudras, you can talk about spiritual aspects or spiritual action and spiritual benefits, and then we can also talk about how scientifically it works, right? तो अगर हम spiritual aspect की बात करें, then mudras जो भी हम अलग अलग टाइप के मुद्रास रखते हैं उससे जो हमारा जो भी एनर्जी होती है वो हम अंदर के साइड डायरेक्ट करते हैं, एंड वी ट्राई टू रीडायरेक्ट आवर प्राणा फ्रॉम द मूलाधारा टू दैट ऑफ मे बी ajna chakra, vishuddha, or that of sahasrara. So basically it goes from below, it is uplifting the energy from, or the prana from down to up. And अगर हम scientifically देखते हैं then it is basically creating a connection. तो by repetitive mudras जो हमारे movement होते हैं या gestures होते हैं, जो attitude होता है, जो भी हमारा टेक्निक रहता है, उससे हम scientifically actually connect करते हैं उस unconscious brain के part को, which is primal, which is not being used, and we're able to make a contact through mudra to that part of the brain, so that this contact is repetitively made strong, and then we can snap out of the repetitive primal patterns which are no more required, so that new wiring can happen and new pathways can be made, which is why mudras also have a scientific basis. So here let's discuss about the types of mudras, and जो हम different types use करते हैं, जो भी हमारे योगा के आसन रहते हैं, एंड जो भी हमारा योग में हम प्रैक्टिसेस रखते हैं उसमें। तो हमारा सबसे इजीएस्ट कॉमनेस्ट ऑब्वियसली जो हमारा मुद्रास रहते हैं वो है हस्त मुद्रा,
या फिर hand mudras. So such mudras are used to be able to direct or to be able to conserve our prana during different poses or whatever techniques we're using. For example, pranayam, meditation, and so on. And you will see during mudras, and in fact, in other mudras or in bandhas, we actually use these hasta mudra also. So we'll be using all these mudras in different other mudras also. So hasta या हैंड मुद्रा जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, वो हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगेन उसमें कोई ऐसा प्रिकॉशंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे हस्त मुद्रा हैं जो हायर लेवल, थोड़े फियर्स, थोड़े पावरफुल एंड स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी यूज होता है. So this one is chin mudra, the one that we use, and the opposite of it is Gyan mudra. Both of these are definitely very commonly used in meditation or pranayam. And अगर आप ये देखते हैं, so इसका जो मीनिंग रहता है वो है कि आपकी इंडेक्स फिंगर और ये जो थंब होता है, it just shows or it is indicative of unity or consciousness, that the individual ego or the individual आत्मा जो है हमारी, वो जो सेपरेशन है उसको हम जोड़ते हैं फ्रॉम with that of the unity or the consciousness or that of oneness. And with this we talk about this is indicative of जो हमारा knowledge है, जो eternal knowledge है, that we can gain, which is why this is often used in pranayama and meditation. ज्ञान एंड चिन मुद्रा. तो आपका ज्ञान मुद्रा ऐसे पाम्स डाउन होता है, चिन मुद्रा पाम्स अप होता है. ये है हमारी योनि मुद्रा. इसको हम जनरली इस तरीके से यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम मुद्रा. एंड ये जो होती है, ये हमारे उस वूम एनर्जी उसको एक्टिवेट करती है. एंड इट इज ऑल्सो इट बेसिकली एक्टिवेट्स एंड करेक्ट्स ऑल द एनर्जी, जो भी हमारी कंफर्टेबल जो है हमारा पोज और एनर्जी का मूवमेंट इजी करती है. उसकी तरह से हम योनि मुद्रा यूज कर सकते हैं. भैरव मुद्रा में हम ऐसे रखते हैं, इट इज योर लेफ्ट हैंड गोइंग बिलो योर राइट हैंड. सो भैरव मुद्रा को हम कुछ स्पेसिफिक मुद्रा में आगे जो है हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम यूज भी करते हैं. भैरव मुद्रा को हम फियर्स या शिव का जो फियर्स रूप है उसको डिनोट करता है. एंड दैट इज व्हाई it is one of the very powerful mudra, and this is also used a lot in meditation and some very powerful mudras, and ये उसी energy को activate भी करता है. So it is also connecting your ida and pingla. It signifies those nadis and also signifies unification. जो हमारा हृदय मुद्रा रहता है उसमें हम इस तरीके से कुछ रखते हैं अपने हाथों को, और ये जो स्पेसिफिकली होता है ये एक्टिवेट करता है आपका हार्ट सेंटर, एंड इट एक्चुअली डायरेक्ट्स योर प्राण टुवर्ड्स योर हार्ट सेंटर, योर हार्ट चक्रा. सो दिस कैन बी यूज्ड इन मेडिटेशन एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स, या कुछ भी योगिक कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं. सो द सेकेंड टाइप ऑफ मुद्राज का जो क्लासिफिकेशन होता है वो है मन या फिर हेड मुद्राज. सो there have been some videos that I've shot on this, which is Shambhavi mudra, Nasikagra mudra. ये थोड़े commonly हमारे used mudras हैं. These are also not just mudra, but these are also used as standalone meditation techniques. So here these mudras are also good enough even for advanced practitioners as meditative techniques. So one of that is obviously, like I've mentioned, is Shambhavi mudra. Here Shambhavi mudra में हमारा जो focal point होता है वो center of the eyebrows, या फिर here you can say is the focal point. So either you can open your eyes and look here and keep focusing here, or you can even close your eyes and meditate on that point. And again, this is a powerful and a very little bit of an advanced technique at least, so this should be practiced by those people majorly. Then जो हमारा नसिकाग्र मुद्रा होता है उसमें यही होता है कि आपका जो नोज टिप होता है उस पे आप जो है फोकस करते हैं, एंड योर होल फोकस इज टुवर्ड्स योर ब्रेथ गोइंग इन एंड आउट, एंड दैट ऑफ द
tip of the nose. So that is how Nasikagra Mudra is. Khechari Mudra is also a little bit of a challenge and is considered to be an advanced mudra, where you have to pull your tongue at the back as much as you can, and it goes at the back of the palate. You might even have to cut your frenum from here. तो ये जो अटैचमेंट है टंग की वो काटी जाती है खेचरी मुद्रा के लिए, और वो आपकी टंग जो पीछे जाती है, और इसके थ्रू फिर आप उज्जय प्राणायाम कर लेने के बाद ये आपकी खेचरी रहती है, विच इज़ वाई इसको एडवांस बोला जाता है। सुनने में भी आपको लग ही रहा होगा थोड़ा एडवांस है। फिर हमारी जो काकी मुद्रा होती है उसमें हमारे बेसिकली जो है जो हमारा माउथ है उसमें एक बीक का हम शेप बनाते हैं। इनहेलेशन हमारी माउथ से होती है और एक्सहेलेशन हमारी नोज से होती है, और उसमें नसिकाग्र मुद्रा को हम जोड़ भी देते हैं। तो कुछ ऐसे आप कह सकते हैं। तो आपका फोकस यहाँ रहेगा पर आपका ब्रेथ उस तरीके से जाएगा। ये है आपकी काकी मुद्रा। जो भुजंगिनी मुद्रा होती है वो भी हमारे इसी मन मुद्रा में आता है, और इसमें आपको बेसिकली आप ऐसे जो है एक तरह से एयर गल्प करते हैं, और बेल्चिंग के साथ जैसे आप ऐसे करके जो है आपका एक्सहेलेशन रहता है। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, ये भी आपकी स्टमक में जो है हम एयर को लेकर और उससे निकाल रहे होते हैं। तो ये क्लेंजिंग ऑफ एयर प्राणा भी करता है, स्पेशली फॉर आवर गट इट इज़ वेरी गुड। फिर जो हमारी भूचरी मुद्रा होती है उसमें आप इस तरीके से अपना हाथ रख सकते हैं। योर थंब टचेस दैट ऑफ योर लिप, एंड यहाँ पे हम फोकस करते हैं छोटी उंगली को, इस पे यहाँ पे हमारा फोकस जाता है, एंड थोड़ा देर ऐसे रख लेने के बाद आप अपने हाथों को हटाते हैं एंड यू कीप फोकसिंग देयर। So here you will be keeping your hands like this and your thumb touches your upper lip, and your focus is towards you keep focusing at the little finger, and then you remove your hand and your focus is still there where the little finger is. So this is Bhuchari Mudra. Then comes your Akashi Mudra also, and here the concentration is inwards. This is mudra where we focus inwards. This can also be externally focused. In Shanmukhi Mudra, now this is also something that you might have heard, Shanmukhi Mudra. तो इसमें क्या रहता है, ये भी बहुत commonly जो used है, इसमें आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं to close all your senses. So it is called 7 gates. We close the 7 gates and then we try to listen to the sounds of that we might hear internally, or the heart sounds or something like that, and that is how it keeps going. Your inhalation happens when you release your middle finger, and exhalation is also normal. I'll just show you that. So you're closing the ear with thumb, then your eyes with the finger, your index, your nostrils closing by the middle, and your lips are closed by your both the other fingers. So when you inhale, you will lift your middle finger and then you hold your breath, and at that point of time you close the nostril and everything and you listen to the sounds, and then for exhalation you will remove your middle finger, keeping all the other fingers at the place. And that is how Shanmukhi Mudra is performed. Then there is another called Unmani Mudra. ये भी थोड़ी advanced होती है, ये भी थोड़ी जो है thoughtless state में ले जाती है, where we focus on bindu which is at the back of our head, and that is how जब आप focus करते हैं उसके साथ में आपकी inhalation और exhalation जो है आप उसको regulate करते हैं। आप उसको जब आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ में आप विजुअलाइजेशन रखते हैं तो उसको हम उन्मनी मुद्रा कहते हैं। अगेन दिस इज एडवांस्ड, सो वी कैन स्किप इट फॉर नाउ। फिर हमारे आता है काया मुद्रा, विच इज पोस्चरल मुद्रास. सो मोस्ट ऑफ दीज काया मुद्रास आर बेसिकली द आसन्स वी हैव परफॉर्म्ड, एंड सम ऑफ दैट you might even understand. One of them is Prana Mudra. So here we actually use Bhairav Mudra, the hand mudra that I was talking about,
देन देयर इज अनदर कॉल्ड योग मुद्रा। तो जो हमारा योग मुद्रा आसन रहता है हम उसी को परफॉर्म भी करते हैं इसमें, एंड हमारा जो विजुअलाइजेशन रहता है और जो हमारी ब्रेथ रहती है वो रेगुलेटेड होती है। सो इन काया मुद्रास बेसिकली आवर ब्रेथ इज रेगुलेटेड, वी हैव आसन टू परफॉर्म एंड ऑल्सो वी माइट बी एबल टू फोकस। सो हमारा जो फोकस रहता है वो कुछ किसी ना किसी चक्रास पे रहता है। तो उस तरीके से ये काया या पोस्चरल मुद्रास हमारे हम कर सकते हैं। देन देयर इज दिस पश्चिनी मुद्रा दैट वी डू। तो ये जो है हमारा कर्णपीड़ आसन है, बेसिकली ये वही ही है जिसमें हमारा ब्रेथ हमें रेगुलेट करना होता है एंड वी फोकस विद योर इनहेलेशन, यू फोकस एट डिफरेंट चक्रास और हम इसमें विशुद्ध चक्रा पे भी फोकस करते हैं। सो हमारा जो नॉर्मल कर्णपीड़ आसन होता है, आई विल जस्ट शो यू नाउ, उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करेंगे। आप पहले जाएंगे हलासन में, फिर कर्णपीड़ आसन में, एंड इसके बाद आपका हाथ जो है वो अंदर जाता है इस तरीके से। एंड आप इसी तरीके से कर्णपीड़ आसन जो है उसमें ही आप अपनी ब्रेथ और जो आपके जो चक्रास हैं उसको उस पे हम विजुअलाइजेशन अपनी रखते हैं व्हाइल वी आर ब्रीथिंग। तो ये आपका हो गया फिर पश्चिमी मुद्रा। फिर आपका जो विपरीत करणी मुद्रा होता है वो भी हमारा आसन ही है। अब आप उसमें वॉल का भी सहारा ले सकते हैं या फिर जिस तरीके से हम सर्वांग आसन करते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपका जो फोकस होता है वो आपके चक्रास पे रहता है। इसमें भी हम विशुद्ध चक्रा पे और हमारे मूलाधार चक्रा पे भी हमारा ध्यान रहता है। तो हम जो भी हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रहती है उसी के साथ में हम अपने चक्रास पे अपना ध्यान रखते हैं जब हम ये आसन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन हमारा जो मांडुकी मुद्रा है उसमें हमारा नॉर्मल ही रहता है। जो हमारा मांडुकी आसन है हम उस तरीके से बैठ जाते हैं और जो हमारा फोकस रहता है वो हमारा मूलाधारा से लेकर हमारे विशुद्ध तक या अजना चक्र तक भी हम रख सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे जो ये आसन है इसमें अगर आप ब्रेथ भी रेगुलेट करते हैं और चक्रास पे भी ध्यान देते हैं तो ये हमारा मुद्रा बन जाता है। फिर जो हमारा तड़की मुद्रा रहता है उसमें हमारा बहुत सिमिलर है जिससे हमारा पश्चिम उत्तानासन रहता है, बस थोड़े से पैर सेपरेटेड रहते हैं और हम इसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने टोज को, बट वी डोंट गो डाउन लाइक दिस। हम इस तरीके से सामने देखते हुए अपने ब्रेथ को रेगुलेट करते हैं अगेन विद आवर फोकस ऑन आवर चक्रास, ऑन डिफरेंट चक्रास। तो इस तरीके से हमारे ये है कुछ पोस्चरल मुद्रास एंड इसमें हमारा एम बस बेसिकली यही रहता है कि हम अपनी ब्रेथ को कैसे अपने चक्रास के साथ में रेगुलेट करते हुए उस पोस्चर को और होल्ड करें। इनमें से हम कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें हम बंधास भी लगाते हैं। तो ये जो हमारा बंधा है वो अलग चीज भी होती है एंड अगेन बंधास आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मुद्रास। सो बंधा मुद्रा इज बेसिकली अ लॉक मुद्रा। देयर आर 3 टाइप्स, महामुद्रा, महावेद मुद्रा, महाभेद मुद्रा। और ये जो अलग अलग मुद्रा होती है एडवांस्ड होती है एंड हियर वी ट्राई टू लॉक और स्टोर द प्राण देयर सो दैट इट कैन गेट एक्टिवेटेड। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव पेरिनियल मुद्रास, और वो जो मुद्रास होती हैं जैसे अश्विनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा, ये भी हमारे बेसिकली बंधास जैसे ही एक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा प्राण को हम रोकने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज एसेंशियली a lot to do with Mooladhara chakras and lower chakras. So this was very brief information about what mudras are and how we can use
तो आपके लेवल पे या फिर जब हमारे पास में कोई टीचर नहीं होता तो आपको सिर्फ बहुत बेसिक वाली ही, जैसे आपके हस्त मुद्रा हो गया, आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस यू कैन विद योर डेली प्रैक्टिस, जो भी आपके आसना प्रैक्टिस होता है उसमें आप मुद्रा का एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं, इफ़ यू रेगुलेट योर ब्रेथ एंड यू कैन प्रॉब्ली फोकस ऑन द चक्रा दैट इट इज़ यूज्ड फॉर। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो वो भी इफेक्टिव होता है। So I hope you can apply it for the right reasons and with the right direction. Thank you so much for keeping up with the video and hope to see you in another video. Thank you so much.